آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، اگر ہے تو اس کے بعد مین ورب، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ، نتھنگ بٹ کے بعد V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but tears. You gave me nothing but tears. Gave، یہ gave کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You یہ سبجیکٹ ہے، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے tears mean آنسو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ She does nothing but dance. She does nothing but dance. She یہ سبجیکٹ ہے، does یہ یہاں مین ورب ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، dance mean تنے مارنا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but happiness. You gave me nothing but happiness۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding، اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس صرف بحث کیا ہے۔ He did nothing but argue. He did nothing but argue. یہ سبجیکٹ ہے did، یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، argue mean بحث کرنا۔ He did nothing but argue، اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ بار بار یہاں مت آؤ، بار بار مجھے فون مت کرنا، بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بار بار، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اوور اینڈ اوور۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس اوور اینڈ اوور، سینٹینس یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا اور یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینس از ویری امپورٹنٹ ہے، اور اوور اینڈ اوور یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین بار بار۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بار بار یہاں مت آؤ، ڈونٹ کم ہیئر اوور اینڈ اوور، ڈونٹ کم ہیئر اوور اینڈ اوور، ڈونٹ کم ہیئر یہ امپیریٹو سینٹینس ہے، وچ مین یہاں مت آؤ، اوور اینڈ اوور مین بار بار۔ نیکسٹ ایگزامپل فار انڈرسٹینڈنگ، بار بار مجھے فون مت کرنا، ڈونٹ کال می اوور اینڈ اوور، ڈونٹ کال می اوور اینڈ اوور، ڈونٹ کال می مجھے فون مت کرنا، اوور اینڈ اوور بار بار۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ He was asking about you over and over. He was asking about you over and over. He was asking about you یہ
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बार बार आप एक ही गलती करते हो, बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सब्र करो वो आ रहा है, सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो मैं बता रहा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हैव पेशेंस प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव पेशेंस ये वही का वही रहेगा विच मीन सब्र करो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सब्र करो वो आ रहा है। हैव पेशेंस ही इज कमिंग, हैव पेशेंस ही इज कमिंग। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो मैं बता रहा हूँ। हैव पेशेंस आई एम टेलिंग, हैव पेशेंस आई एम टेलिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए मजीद कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो हमें काम करने दो, सब्र करो हमें काम करने दो। हैव पेशेंस लेट अस डू वर्क, हैव पेशेंस लेट अस डू वर्क। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो खाना तैयार हो रहा है। हैव पेशेंस फूड इज बीइंग कुक्ड, हैव पेशेंस फूड इज बीइंग कुक्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सब्र करो वो जा रहा है, सब्र करो वो जा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर कोई झूठा नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लायर, नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता, हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता, हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मम्मी। इसके बाद वो घर जाएगा, इसके बाद मैं सो जाऊंगा,
इसके बाद तुम टिक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम। आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। इसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।